Hello students, welcome back, and in today's session we are going to see Matthew Arnold from Unit 4 Assistant Professor syllabus. Okay, so you have already know how we go through each and writer. We have an introduction and then we will understand whole summary and then we will have some questions at the last. So without any wasting our time, let's move to our writer Matthew Arnold. So let's talk about his birth. He was born on 24th December 1882. Okay, and if I talk about the death, 15 April 1888, and this date is, you have to remember. और यहाँ पे ट्रियस एलियट बॉर्न करते हैं. When he died in this session in 1888 and T.S. Eliot was born. Okay, it's an additional information. So ये एक टेक्निक है, यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग. अगर आप ऐसे देख लेते हैं किसी डेट ऑफ बर्थ में, अगर इफ दिस डेट इज इम्पॉर्टेंट, आप सारा कुछ यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए एंड इट विल हेल्प यू अलॉट. इट्स माई गारंटी. ओके, सो नाउ वी हैव गॉन थ्रू द birth and death. So he is a poet, he is a cultural critic. आपको पता ही होगा, इनके बहुत फेमस वर्क है टच स्टोन मेथड इन्होंने दिया था. अब टच स्टोन मेथड किस वर्क के अंदर दिया था ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है. ओके, मैं एक वर्ड आपको हिंट दे देता हूँ. एनआरची है, उसमें आपको शुरू का बताना है. ओके, सो ही इज वेरी फेमस क्रिटिक एज वेल एज ही इज वेरी फेमस पोएट. मैथ्यू अर्नोल्ड, ही बिलोंग टू विक्टोरियन पीरियड. यू कैन सी द टाइम पीरियड. ही बिलोंग्स टू विक्टोरियन पीरियड. which period he belongs to Victorian period. Okay, और इनको कैरेक्टराइज्ड किया है एज अ सेज राइटर. ओके, सेज राइटर भी कहते हैं इनको. और अगर हम फेमस वर्क की बात करें तो डोवर बीच इज़ वेरी फेमस, जो हमारे सिलेबस में है. देन द स्कॉलर जिप्सी, थायराइसिस एंड कल्चर एंड एनआरची. ओके, सो if you haven't I know my students, they don't comment, but here is the answer. In this work he have presented the touchstone method, and it is a literary work. And then we have literature and dogma, very famous work of Matthew Arnold. I hope you are clear with it. This is the short introduction. You can see his picture clearly. He is our writer. He is Matthew Arnold, born on 24th December 1882 and died at 15 April 1888. Okay, so we have already discussed that he is a Victorian poet, critic and educationalist. ही वॉज, अगर बात करें तो शहलम एक सुरे में इंग्लैंड में जगह है, यहाँ पे इनका जन्म होता है. और इनकी एजुकेशन कहाँ होती है? रग्वी स्कूल है, एंड इट्स कम अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. ओके, नाउ लेट्स मूव टू हिज फादर. अब इनके फादर हैं थॉमस अर्नोल्ड. ठीक है, ये है मैथ्यू अर्नोल्ड, इनके फादर है थॉमस अर्नोल्ड. एंड ही वॉज अ हिस्टोरियन, एन एजुकेशनल रिफॉर्मर एंड अ हेडमास्टर. ओके, ही हेडमास्टर भी हम जानेंगे कि इनका फादर का भी बहुत बड़ा रोल था मैथ्यू अर्नोल्ड इतनी प्रॉपर्टी गेन करने में. रग्बी स्कूल के ये हेडमास्टर थे, है ना, जहाँ से ये पढ़े हैं, रग्बी स्कूल. His father was the headmaster of this particular school. He wrote his first volume of poem in 1849. फर्स्ट वॉल्यूम कब लिखते हैं? ये लिखते हैं 1849 में. Then he taught classic for 2 years and later in 1951 he appointed as the inspector of school, a position he hold for 35 years. ये एक स्कूल में एक पोजीशन ले लेते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल. स्कूल के इंस्पेक्टर बना दिया जाता है. हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 35 ईयर्स. हाउ मेनी ईयर्स? 35 ईयर्स. अब 1857 आता है. ही बिकेम द प्रोफेसर ऑफ पोएट्री. अब प्रोफेसर ऑफ पोएट्री बनते हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में. देन ही एक्नॉलेज्ड हिज मास्टर्स एज द ग्रेट फ्रेंच क्रिटिक सेंट बीहू. ओके, इट्स फ्रेंच. सो इनका जो मास्टर थे ये फ्रेंच थे. Okay, so now let's move further. He was advocated on the death of his friend Dean Stanley, and thus he wrote an ode on the West
Minister Abe. Very important question can be framed from this particular writer. Okay, so if the exam will ask you कि बताइए कि this particular is it is ode on, it is dedicated to whom? So Dean Stanley, ये Dean Stanley को dedicated था, Dean Stanley. This particular work is dedicated to this person. Very important position on YouTube or anywhere. You will not got this much information that I am providing to you. Please take care of your notes. You have to note it down everything. आपको सब कुछ लिखना है और जो भी information दे रहा हूँ शायद ही आपको कहीं पे मिलेगी. It's my guarantee. Okay. So आगे चलते हैं और एक और बहुत ही important point देखते हैं. A Southern Night. ये एक पोएम है. इट्स अ पोएम विच अर्नोल्ड लैमेंट्स द डेथ ऑफ हिज ब्रदर. अर्नोल्ड के ब्रदर भी थे, उनके डेथ पे ये, अब डेथ पे क्या लिखते हैं? एलर्जी, है ना? व्हेन एलर्जी इज रिटन ऑन डेथ एंड डेथ ऑफ whom? His brother. You have to find the name of the brother if you want. If you can find it, you can find it. Okay, you can find his brother name. Okay, then move further. Rugby Chapel is an elegiac poem on the memory of his father. I have already told you, he is the principal or headmaster of this particular school, Rugby school, and he written an elegiac poem on this particular, because अब इन्होंने इतना समय बिताया है, इनके पिता रहे थे, so there are so many things. Very good poem. I have gone through it. Very nice. I like it. You can also read it and you can have more knowledge in English literature, because this particular writer Matthew Arnold is very important from net point of view also. If you are someone who haven't qualified the net yet and you want to crack this examination, you can contact me. Okay, you can contact me on this particular number. I will help you out. Okay, so now let's move further and let's see some more points. So we have another point, and according to Arnold, the age of expansion is followed by the age of concentration. अर्नोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं कि जो अभी हमारा एज है ये एक्सपेंड कर रहा है, इट्स एक्सपेंडिंग. ओके, इट्स एक्सपेंडिंग एंड इट इज फॉलोड बाय द एज ऑफ कंसंट्रेशन. अब जो एक्सपेंड कर रहा था अब वो समा रहा है ना, तो ये अर्नोल्ड कहते हैं. उसके बाद देखते हैं आगे. उसके बाद अर्नोल्ड को क्या कहा है? द प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. हु इज नोन एज द प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी? द राइट आंसर इज मैथ्यू अर्नोल्ड. Matthew Arnold is the right answer. Who is called as the prophet of modern society? Matthew Arnold. Very good. Arnold believed that there should be the seriousness in literature and poetry should be in grand style. Very important, very important. ग्रैंड स्टाइल की बात किन्होंने की है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने बात करी है, और इसमें सीरियसनेस इन लिटरेचर को बताया है इन्होंने, है ना. एंड द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम अपीयर्ड, जो हमने देखी 1849 में एक फर्स्ट पोएम आती है इनकी जिसका नाम है स्ट्रेड रेवल्स एंड द अदर पोएम्स, बट वाज विथड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलेशन बिकॉज इट कुड नॉट ड्रॉ द पब्लिक अटेंशन. और ये एक वर्क लिखते हैं स्ट्रैप्ड रेवलर एंड द अदर पोएम्स, बट यू नो पॉपुलर नहीं होते. आप देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ मैं. अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डालते हैं, आप इंस्टाग्राम पे आपका अकाउंट है पब्लिक, आप एक वीडियो डाल देते हैं, आप वन वीडियो डाल देते हैं और देखते हैं ओ ओनली 50 व्यूज एंड आई विल डिलीट इट. ही डिड द सेम इन दिस पर्टिकुलर वर्क. ओके, देन द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ दिस पोएट. अब इसी का एक सेकेंड वॉल्यूम ये फिर लिखते हैं, है ना, जिसका नाम है एम्पिडोक्लस ऑन एटना एंड अदर पोएम्स, और ये 1592. आफ्टर 3 years बाद ये फिर से एक सेकेंड वॉल्यूम निकालते हैं, एम्पिडोक्लस ऑन एटना एंड अदर पोएम्स, एंड वाज आल्सो विड्रॉन बिकॉज इसको भी फिर से विड्रॉ कर लेते हैं बिकॉज अर्नोल्ड वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस टाइटल. अब इस बार इसको क्या समस्या आई? वीडियो की टाइटल की समस्या आई. देन ही अगेन विथड्रॉ. ही हैव पब्लिश्ड 2 poems. You can see Stride Revels and Empedocles on Etna, and both are drawn. Okay, but on the request of Robert Browning, he is a great poet, we know. इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग ही है. एंड इट वाज रीपब्लिश्ड इन 1877. 1867 में ये फिर से पब्लिश्ड होती है. Okay, so you have to remember this work. This work is first published in
1852 एंड विद ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये पोएम बहुत अच्छी है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अर्नॉल्ड को कहते हैं, और ये वर्क फिर से पब्लिश होता है और ये फाइनली फिर पब्लिश होता है, फिर विड्रॉ नहीं करते हैं, फिर ये चलता रहता है। ओके, सो नाउ आई होप यू आर क्लियर विथ इट। नाउ हिज ट्रेजेडी मैरोपोप, इन्होंने एक ट्रेजेडी लिखते हैं, एक प्ले लिखते हैं जिसका नाम है मैरोप एंड ये पब्लिश होता है 1858 में। आफ्टर द गैप ऑफ 9 years न्यू अब गैप 9 साल तक ये खाली बैठे रहते हैं। देन अ न्यू कलेक्शन ऑफ पोएम्स वर पब्लिश्ड इन 1867 एंड यू कैन सी दिस डेट एंड दिस डेट टाइटल न्यू पोएम्स ऑफ विच, और यही इसी में जब 9 साल बाद ये जब आते हैं तो ये फिर से पोएम लिखते हैं और इसमें ये वाला भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आर यू क्लियर विथ इट? ओके, great. So you can see okay, so he published his lectures on the translating Homer in 1861 followed by the last words on the translating Homer। ये होमर को पढ़ते हैं, इनको ट्रांसलेट करते हैं। okay, you can see this work, particular work is published in 1861 and the last word of translating Homer in 62 है ना, 61 and 62 you have to remember। okay, then he wrote the famous youthful sonnet शेक्सपियर, बहुत ही अच्छी सोनेट लिखते हैं शेक्सपियर in 1844, बट ये लिखते तो देते हैं 44 बट आफ्टर 4 years or you can say 5 years he published in 1849 in the memory of W.B. Wordsworth he wrote। अब इन मेमोरी ऑफ वर्ड्सवर्थ के मेमोरी में ये कुछ लिखते हैं जिसको बोलते हैं द लास्ट पोएटिक वॉइस इज डम्ब वी स्टैंड टुडे बाय वर्ड्सवर्थ टॉम्ब। इट वाज रिटन एज द मेमोरियल वर्सेस इन 1850 आफ्टर द डेथ ऑफ द वर्ड्सवर्थ। वी नो आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ ही मैथ्यू अर्नोल्ड इनको प्रोड्यूस करते हैं, ये इनको पसंद करते थे एंड दिस इज ऑल द स्टोरी बिहाइंड इट। वी विल मूव फर्दर एंड वी विल सी जॉन केबल। अब जॉन केबल कौन है? जॉन केबल, यू हैव टू रिमेंबर जॉन केबल, ही वाज द गॉडफादर ऑफ अर्नोल्ड। देयर मे बी अ क्वेश्चन, हु इज द गॉडफादर ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड? द आंसर इज जॉन केबल। अर्नोल्ड डाइड व्हाइल कैचिंग अ ट्रेन एट लिवरपूल। ट्रेन पकड़ते हुए ये मरे हैं। कैसे मरे हैं? बहुत ही ट्रेजिक हादसा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ किंग, यू कैन से इन इंडिया ओनली, देयर वाज अ मुगल एम्परर, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिम? हुमायूं। He fall down from stairs and he died just like him। Arnold died catching a train। ट्रेन को पकड़ते पकड़ते ही डेथ हो गई इनकी, है ना, because there is no accident, there is a heart failure on 15 April 1888 at age of 50। when he died at the age of 65। Arnold poems was included in Ray Bradbury Fahrenheit। very important this देखिए, अब अर्नोल्ड की कुछ पोएम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है रे ब्रैडबरीज फ़ारेनहाइट 451, इसमें इनको इंक्लूड की गई है। उस समय का ये बहुत फेमस ही वो था पब्लिशर। ही वॉज द इन्फ्लुएंस्ड बाय द जर्मन गोथे एंड फ्रेंच सेनेना। दीज आर द टू फिलोसफर और यू कैन से राइटर। ये जो गोथे जो है ये जर्मन है एंड सेनेका इज फ्रॉम फ्रांस। ही डब द टचस्टोन मेथड विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। मेजर वर्क्स की बात करते हैं। चलिए, आई होप आपको इंट्रोडक्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, कुछ भी मैं छूटने नहीं दूंगा, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। वी विल कवर एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, सो नाउ हमें पता होनी चाहिए इनके मेजर वर्क्स, क्योंकि मैथ्यू अर्नोल्ड है हमारे सिलेबस में एंड देयर में भी सी। आप क्या कर रहे हैं, गलतियां सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है एग्जाम में, कि सिलेबस में आपको पर्टिकुलर राइटर दिया हुआ है और पर्टिकुलर वर्क यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैथ्यू अर्नोल्ड है, डोवर बीच दिया है, आप बस डोवर बीच पढ़ के चले जाएंगे और अगर तो कुछ इधर उधर से क्वेश्चन आया आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप गलत टिक करके आ जाएंगे। सो दैट इज़ द रीज़न हमें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो भी पर्टिकुलर राइटर मेंशन है हमारे सिलेबस में। आ रही है ना आपको बात में समझ कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आनी चाहिए। मेजर वर्क्स ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड देखते हैं। डोवर बीच पब्लिश्ड इन 1867, स्कॉलर जिप्सी, रगवे चैपल, एलर्जी पोएम ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर 1867, then culture and anarchy, an essay in the political and social criticism, and then the Thyrsis, it was written on the death of his friend Arthur Hughes। लीजिए, आपको मैंने सर्च करने नाम बोला होगा बट मैं जानता हूँ आप लोग
बहुत ही आलस भरा जीवन है, बिल्कुल नहीं करे होंगे। सो आई हैव रिटन, फ्रेंड का क्या नाम है, आर्थर, आर्थर ह्यूग क्लॉग, प्लीज रिमेंबर इट। ओके, ऑन द स्टडी ऑफ सेलेटिक लिटरेचर 1867 में ये बहुत वर्क पब्लिश कर रहे हैं, देखते चलिएगा। ऐसे इन द क्रिटिसिज्म प्रोज लिखते हैं, ये फर्स्ट सीरीज लाते हैं 1865 में, और भी सीरीज हैं, घबराइए मत, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सेकेंड सीरीज लाते हैं, डेथ होने ही वाली होती है ना, यहीं पे तो इनकी डेथ हुई है, एंड सेकेंड सीरीज एंड दैट्स इट। सौरभ एंड रुस्तम, वेरी फेमस पोएम, यू हैव टू फाइंड द publication date. Strayed Revelers and the other poems I have already told you, but it was withdrawn, है ना। Then Empodius on the Etna and other poems 1852 second volume. Then Cromwell, very important, 1843, and he got prize at Oxford for this, Oxford में इनको प्राइज मिलता है। Alaric at Rome 1840, रग्बे प्राइज पोएम मिलता है इसको, है ना। And then A Southern Night to Marguerite, okay, continued 1852. It was published in the Empodius on Etna in 1857. The poem was published as a sequel to the poem. एक sequel है ये, किसका sequel है, Isolation to the Marguerite. Okay, then poems लिखते हैं, poems a new edition 1853 में poems फिर से लिखते हैं, second series, ये these are the not important. Okay, this work is important. मैरोप अ ट्रेजेडी लिखते हैं 1858 में, देन न्यू पोएम्स 1867 में, प्रीफेस टू द पोएम्स 1853 में। ओके, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइड यू एवरीथिंग इन दिस सिंगल वीडियो, सो यू हैव टू वरी नॉट। ओके, आई होप यू आर क्लियर विथ इट, आई एम प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, गॉट यू, स्क्रीनशॉट नोट्स ले लिया है आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। प्रोज वर्क के ऊपर ध्यान देते हैं, थोड़ा सा प्रोज वर्क देख लेते हैं। तो इंग्लैंड एंड द इटालियन क्वेश्चन, ये पब्लिश होता है 1859 में। ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, 3 लेक्चर्स गिवन एट द ऑक्सफोर्ड 1861। ऑन द मॉडर्न एलिमेंट इन द लिटरेचर 1869। लिटरेचर एंड डोगमा एंड ऐसे टुवर्ड्स अ बेटर अप्रीहेंशन ऑफ द बाइबल 1873। then the 100 greatest men, portraits of the 100 greatest men of the history, on the study of the Celtic literature, discourses in America, education department and essay on Milton, very important, this one is very important, essay लिखा है। now you can be asked like tell me a name who have written essay on Milton, तो right option is मैथ्यू अर्नोल्ड। अब सोनेट की बात करते हैं, है ना। प्रोज वर्क में बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट वन देख लेते हैं, है ना। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट इज इंपॉर्टेंट, एंड देन on translating Homer, this one is important. Okay, this one you can say important, only this work is very important. Okay, you have to remember it. Now let's talk about the sonnet. तो सबसे पहले ये शेक्सपियर पे sonnet लिखते हैं 1849 में। Okay, आगे चलते हैं, देखते हैं और कितने sonnets लिखे हैं, है ना। बस एक ही sonnet लिखा है और शेक्सपियर पे लिखे हैं। और अब हम आ जाते हैं सीधे अपने वर्क पे, डोवर बीच पे। अब आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, आई हैवंट, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ मिस किया है। अगर मिस किया है आपको खुद से ही करना पड़ेगा अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, सो नाउ दिस पर्टिकुलर वर्क इज मेंशन इन आवर सिलेबस एंड नाउ टुडे वी विल डू डोवर बीच। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं डोवर बीच का। सबसे सेलिब्रेटेड पोएम है डोवर बीच, आपको पता ही होगा, सब बच्चों ने पढ़ी हुई है। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन में रहती है ना डोवर बीच, और कुछ कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में आपको पीजी में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मिलेगा, है ना। यूजी एंड पीजी, you will find this poem Dover Beach. Okay, so now let's talk about it. Is I have already told you, I have put it everything on the screen. You can have the screenshot. Okay, and I will provide you the notes after the class. I hope you are getting all the notes. If you are not getting, you can contact me. I will share it on my Telegram group, as well as you can join my Telegram. You can join my Telegram as well as. Dover Beach is the most celebrated poem by Matthew Arnold, a writer and the educator of the Victorian era. The poem expresses a crisis of faith. इस poem में हमें क्या क्या मिलेगा? Crisis of faith मिलेगा. With the speaker acknowledges
देखो अब डिमिनिशिंग जो क्रिश्चियनिटी था वो डिमिनिश हो रहा था, विलुप्त हो रहा था, है ना, उसका भी जिक्र मिलेगा हमें. देन विच द स्पीकर सीज एज द बिगिनिंग, being unable to withstand with the rising tide of scientific discovery. Scientific discoveries बहुत ज़्यादा थी, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, and railway is there, and so many scientific advancement is there, है ना, scientific advancement is there. So these things are there. So इसकी वजह से जो क्रिश्चियनिटी के जो वैल्यूज थे वो थोड़े से कम हो रहे थे. न्यू रिसर्च एंड द इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी कास्ट डाउट ऑन द ह्यूमन राइट्स, है ना. अब देखें आप, वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, बट इस इनके टाइम पे तो नहीं हुआ, but let's see. And the central special role in the universe, the speaker in the poem senses the changes almost subconsciously. स्पीकर एक चेंज महसूस कर रहा है कि हम किसी और की तरफ जा रहे हैं. जब हमने इंट्रोडक्शन देखा तो हमने देखा दिस द वर्ल्ड वाज एक्सपेंसिंग बट नाउ इट इज कंस्ट्रक्टिंग, है ना. सीइंग द हेयरिंग ऑफ द सी, देखो seeing and hearing in the sea that the speaker is looking at upon with his experience of alienation, बहुत ही alienation, बहुत ही अकेलापन, बहुत ही अनजान फील कर रहा है ना. then doubt is there and melancholy is there. The poem is often interpreted as the remarkably forwarding thinking particularly of 20th century crisis of faith like externalism and absurdism. See, इनका ही थ्योरी है, एक theory whatsoever thing exists in this world is come under the existentialism and absurdism, bakwas. Whatsoever thing that is bakwas, full of shit, for example Thomas Becket, Waiting for the Godot, The Birthday Party by Harold Pilder, these are the absurd drama. Okay, the poem is inquiry into the what it means to be alive. So अगर सबसे सिंपल भाषा में अगर समझे तो हमें ये समझना है कि this poem is the inquiry into what it means to be alive. This is the gist of this paragraph. You can have a note, and I have already underlined whatsoever thing is important. So with it we will move further and we will see some more points. So here is the poem. समझते हैं पोएम को. समझ गए ना आप इंट्रोडक्शन? कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं मेरे से. आई कैन सी योर कमेंट्स राइट नाउ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Dover Beach. The sea is calm tonight. The tide is full. The moon lies fair. You have to when you read any poem, just imagine it. You have to image. You have to create an image in your subconscious mind. Whatsoever thing you are reading on the board, you have to create an image. So the sea is sea. अब मान लो ये डोवर बीच है ना. This is our Dover Beach. Okay, this is sea. Not this. This is sea, and this is land. And this is land. Okay, and sea is calm tonight. और यहाँ पे हम मूल बना देते हैं, है ना. The sea is calm tonight. आज बहुत ही शांत है ये समुंदर. The tide is full. The moon lies fair. मून से एकदम बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, समुद्र एकदम शांत है एंड ठंडी हवा चल रही है. अपॉन द स्ट्रेट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट एट लाइट. सी, ही इज स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रेट्स. सो यू कैन हैव दिस वर्ल्ड मैप. आई एम जस्ट टेकिंग द यूरोप. सो दिस इज इंग्लैंड. ओके, दिस इज इंग्लैंड एंड हेयर देयर इज अ फ्रांस, Germany. Okay, these country. And what is this is straight. ठीक है. और यहाँ से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो ये फ्रांस है. यहाँ पे ये व्यक्ति इस चीज को देख रहा है. Upon the strait on the French coast the light gleams and is gone. The cliffs of England stand. और यहाँ पे बहुत ही गंभीर बात कहते हैं. ग्लीम्स इज गॉन एंड क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड. मतलब आपने बहुत सारी वॉर्स देखी होंगी तो हमेशा इंग्लैंड विजय हो जाता है, इसकी बात कर रहे हैं. ग्लिम्बलिंग एंड वास्ट आउट इज इन द ट्रैंक्विल बे. कम टू द विंडो स्वीट इज नाइट एयर. कैसी एयर है? एकदम बहुत अच्छी, शांत, एकदम बहुत अच्छा फील हो रहा है राइटर को, है ना. Only from the long line of spray where the sea meets the moon blanched land.
आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड यू द दिस इमेज, है ना। यहाँ पे सी है, ये लैंड है, और यहाँ पे टकरा रहा है ना। वेयर द सी मीट्स द मून बैलेंस लैंड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सन थी, इनकी ये मून था, इस पे रेस पड़ रही है और ये एकदम इस जमीन पे टकरा रही है ना। लिसन, सुनो, यू हेयर द ग्लैटरिंग रोड, क्या तुमने ग्लैटरिंग रोड सुना, समुद्र की जो टकराने की जमीन से आवाज आ रही है। ऑफ पेबल्स, यहाँ पे पेबल्स हैं, पत्थर हैं, मरीन बीच अगर मुंबई का आपने देखा होगा, जस्ट लाइक दैट, विच द वेव्स ड्रॉज बैक एंड फ्लिंग एट देयर रिटर्न अप ऑफ द हाई स्ट्रेंथ, और फिर टकरा के वो लहरें वापस की ओर जा रही हैं। बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन with tremulous cadence slow and bring the eternal note of sadness in, और ये सब चीज़ें करके एक महसूस कर रहे हैं कि अब कुछ बचा नहीं है। these are the things which have joyed and now nothing is left to me, these are the thoughts of our writer Matthew Arnold. Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind and turbid ebb and flow of human misery we find also in the second thought, hearing it by this distant northern sea. The sea of faith was once too at the full, and the round earth's shore lay like the folds of the bright bridal flood, but now I only hear alienation. You can see alienation, कितना alienated feel कर रहे हैं, the writer is feeling so alienated, you can see in this line. Just listen to me completely, then I will explain you line by line. It's melancholy long withdrawing roll, retreating to the breath of the night wind down the vast ages drear and naked slings of the world. So Sophocles, everyone he knows, he is the great philosopher, है ना। ही इज द फिलोसफर लॉन्ग अगो हेयर्ड इन द एगोन, एक जगह का नाम है। इट ब्राउट इनटू हिज माइंड ट्रिबड एब, एक तरीके से बेचैनी एब, है ना। एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी, और बताया कि बहुत ही मिजरीबल लाइफ है ना। फाइंड्स ऑल्सो द साउंड ऑफ थॉट, एक थॉट का साउंड, मतलब एक थॉट आता है। हियरिंग इट दिस इज द डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, आगे समझ में, है ना। And then now he says that the sea of faith was once too at the full and round earth's shore. Sea of faith expanding, the world is expanding, है ना। न्यू नेशन colonizations, इन सब की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। Lay like the folds of the bright riddle flood, but now I can only hear. बट ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट ओनली द राइटर इज महसूस कर रहा है, बट और लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं। दैट क्रिश्चियनिटी इज लूजिंग देयर फेथ, ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो द सी ऑफ फेथ मीन्स क्रिश्चियनिटी। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। ओके, सो ऐसे करके जब राइटर लिखता है तो हमें चीज़ों को पकड़नी होती है। मेलनकली लॉन्ग विथार्डिंग रोड, retreating to the breath of the night wind down to the voice as is dear, the naked slingers of the world. ओके, वो वर्ल्ड को बता रहा है कि बहुत ही मतलब रोल सुन रहे हो, धरती पुकार रही है। नाउ अंत इज वेरी नियर, द एंड इज वेरी नियर, दिस काइंड्स ऑफ थॉट इज देयर ऑन द पोएट्स माइंड। Okay, so before moving it, I would like to have give you the important information. This is my Telegram group, or you can join me on WhatsApp on this following number. I will help you out. Okay, so now we have this paragraph, last paragraph. Ah love, let us be true. Ah love, let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy nor love nor light nor certitude nor peace nor help for pain, and we are here as on the darkling plain, swept into the confused arms of the struggle and the flights where ignorant armies clash by tonight. एंड ऐसे करके हमारी पोएम खत्म हो जाती है। और इस लाइन को मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। आह लव, लेट अस बी ट्रू, ओ मेरे प्यार आइए, टू वन अनदर फॉर वर्ड सीम्स, और ये हंसती खेलती जो दुनिया बची हुई है, टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, जो कि एक लाई है, झूठ है। सो वेरियस, मतलब सो वेरियस, मतलब कितना सारा, कितना खूबसूरत और कितना नया।
हैट रियली नाइदर जॉय, अब यहाँ पे ना जॉय है, नॉर लव है, नॉर लाइट है, लाइट नहीं है, जॉय नहीं है ना, नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस, ना सर्टिट्यूड है ना पीस है, नॉर हेल्प ऑफ पेन, और इस जो दर्द है इसके लिए कोई भी हेल्प नहीं है, कोई भी पेन नहीं है, एंड वी आर हेयर एज एन डार्कलिंग प्लेन स्वेप्ट इनटू द कंफ्यूज अलार्म्स ऑफ द स्ट्रगल एंड द फाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय टुनाइट। अब इग्नोरेंट आर्मीज मतलब पीपल है ना, अब ये क्लैश करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, एंड दिस वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड, दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक द, अभी हम इसका आगे देख रहे हैं समरी है ना, आपको नहीं अगर पोएम समझ में आई होगी तो अभी आ जाएगी, अब चिंता मत करिए। तो जो भी हमने पढ़ा अब उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये वाली पोएम आपके एग्ज़ाम में है, आप चाहे नेट के लिए दे रहे हो, सेट दे रहे हो अपने स्टेट का, आप बीएड के एग्ज़ाम में अगर आपका इंग्लिश पढ़ाना है, आपको टीचिंग करनी है, आपको कैसे करनी है, यू कैन सी मी राइट नाउ, यू हैव टू डू द सेम इन द क्लासरूम वेयर योर क्लासरूम इज़ फुल ऑफ द स्टूडेंट्स, आई विश, and then you are teaching like me one day, because I want everyone to be succeed in their life. So Dover Beach की समरी देखते हैं। The speaker looks upon Clamcy, देखा हमने कि वो कलामसी पे देख रहा है, and observes the fullness of the tide, टाइड्स आ रही हैं, एंड ही इज ऑब्जर्विंग, मून का रिफ्लेक्शन हो रहा है, वी हैव सीन ऑन द वाटर, लुकिंग अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल तो मैंने आपको ड्रॉ करके बता ही दिया। द स्पीकर सीज द लाइट्स ऑफ द फ्रेंच कोस्ट, फ्रेंच कोस्ट पे जो भी लाइट्स है वो भी सीज, वो फेड हो रही है ना, वाइल द क्लिप्स ऑफ द इंग्लिश कोट्स स्टैंड टॉल एंड ब्राइट, वो फ्रेंच वाली फ्लैश हो रही है और इंग्लिश वाली जो इंग्लिश चैनल साइड लाइट है वो एकदम स्टैंड टॉल एंड ब्राइट है। द बे सीम्स काम्स, जो बे है ना, Bay of Bengal, you have heard of it, so there are so many ways in our world, so वो भी काम है। Suddenly the speaker addressed someone as, अब ये सब चीज़ें चल ही रहा था, आपकी क्रिएट इमेज हुई थी, फिर suddenly someone कौन, Sophocles आए थे है ना, देखते हैं, and implores his personal to come and look at what the speaker is looking at and to enjoy the night's pleasant air, है ना। द स्पीकर सेंसेस समथिंग इज नॉट क्वाइट राइट, इतनी शांति होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि अभी भी कुछ तो मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग। स्प्राई वेयर द वाटर मीट्स द मूनलाइट एंड द स्पीकर इंस्ट्रक्ट द अदर पर्सन टू लिसन टू द साउंड ऑफ द पेबल्स एट द वेव्स। अब वो तो महसूस कर रहे हैं, बट उसके पास भी एक आदमी है, एंड वो कहते हैं क्या तुम भी ये चीज़ें महसूस कर पा रहे हो, क्या तुम भी ये सब चीज़ें सुन पा रहे हो क्या। Up the beach and down again, the speaker notes this slow repeating action and identifies it with the eternal sadness, and ये सब चीज़ें देख के ही उसमें बहुत सारा दुखी हो जाते हैं हमारे राइटर। All of the sudden, the speaker thinks about the ancient Greek playwright Sophocles and imagines Sophocles hearing the same sadness. जो सैडनेस वो मैथ्यू आर्नोल्ड महसूस कर पा रहे हैं, वही सेम सैडनेस कौन महसूस कर रहे हैं, सोफोक्लस। इन द एजेंसी, देयर इज वन सी एजेंसी, एज द स्पीकर सेज नाउ द इंग्लिश कोस्ट, सोफोक्लस इन द माइंड ऑफ द स्पीकर लाइक्स द सैड साउंड ऑफ द वेव्स ऑफ द जनरल सोरो ऑफ humanity which moves like the waves. The speaker then notice another thought that comes with the sound of the sea, और उसको फिर से एक और साउंड आता है दिमाग में, और हम देखते हैं क्या साउंड आता है। एक्सप्लेनिंग द नेक्स्ट थॉट, अब वो अपने नेक्स्ट सॉन्ग को एक्सप्लेन करते हैं। द स्पीकर डिस्क्राइब रिलीजियस फेथ एज द सी दैट वाज once full like the tide, at that time its reach around the earth like a griddle, now through the speaker is just here that she said सैडनेस ही सैडनेस है ना, एज द सी ऑफ फेथ बिकम्स स्मॉलर। अब जो सी यहाँ पे क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च द सर्कल इज नाउ constructing not expanding, says the speaker, is disappear into the atmosphere and leaves the edges of the world naked, and दुनिया को एकदम you can say वर्ल्ड को एकदम naked कर देगा। the speaker suddenly address the companion, एक कंपेनियन है उसको बोल रहा है लव, हमने बोला आह लव कम सो ट्रू, सो लव एंड स्टेट डेस्परेटली दैट द टू ऑफ देम नीड टू बी ट्रीट ईच अदर विद द ऑनेस्टी। अब जो लोग प्यार करते हैं उन्हें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। दिस इज बिकॉज द वर्ल्ड थ्रू इट इज द ड्रीम लाइक क्वालिटी ऑफ वेराइटी वेरियस, we have seen the poem variety, beauty and newness doesn't actually offer joy. See, we have gone through the text है ना, जिसमें हमने देखा ड्रीम लाइक क्वालिटीज़ के बारे में बात की हुई है ना, ड्रीम लाइक क्वालिटीज़।
Now once more we will see the poem. Dreamlike quality, remember, variety, beauty and newness does not actually offers joy, love and clarity. Neither claims the speaker can it provide certainly peace or relief from the pain. The speaker then compares their collective situation to standing on the flat and dark piece of land which is caught up in the chaos of fighting. Here's the battle between the unknowing groups continue with the undercover of the darkness. And see, you can see this very important line of it. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लास्ट स्टेंजा आपको एकदम बहुत अच्छे से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ कह जाते हैं इतनी सी लाइन में. आह लव है ना, आह लव कम सो ट्रू. आई, वो अपने प्यार को एड्रेस कर रहे हैं. टू वन एंड अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक द लैंड ऑफ ड्रीम्स, है ना. सो वेरियस मतलब सो वैरायटी, यहाँ पे बहुत सारी तरह तरह की वैरायटीज़ हैं. ब्यूटीफुल खूबसूरत है, और सो न्यू, बट ये ना ही जॉय प्रोवाइड करते हैं, ना लव ना लाइट है. नॉट सर्टिट्यूड नॉट पीस नॉट हेल्प ऑफ द पेन एंड वी आर हेयर ऑन द डार्कलिंग पेन. अब प्लेन एक जगह पे है, यहाँ पे ये फिर से कुछ चीज़ें स्पॉटेड करते हैं कि यहाँ पे दो लोग हैं, ग्रुप हैं, वो अब क्लैश कर देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, और ऐसे करके ये पोएम ख़त्म हो जाती है. मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, इतने अच्छे से शायद कोई समझा पाए, आप बस देखते चलिए, है ना. और वो जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पैराग्राफ था, और यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ का मैंने समरी लगा दी है, तो जिसमें द स्पीकर सडनली एड्रेस टू कंपनी एज लव द स्टेट डेस्परेटली दैट टू ऑफ देम नीड्स टू ट्रीट ईच अदर. हमें दो लोगों को कैसा करना है, गुड ट्रीटमेंट चाहिए, है ना. गुड ट्रीटमेंट शुड बी देयर, ऑनेस्टी शुड बी देयर एंड ऑथेंसिटी, है ना, authenticity should be there. This is because the world through it has the dream like quality. क्योंकि जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, इसमें ड्रीम लाइक क्वालिटी है. ड्रीम लाइक क्वालिटी में वैरायटी मिलेगी आपको, ब्यूटी मिलेगी, न्यूनेस मिलेगी, बट ये एक्चुअली में ऑफर नहीं करता है जॉय, लव एंड क्लियरिटी. नाइदर क्लेम्स द स्पीकर कैन इट प्रूव सर्टेन पीस एंड रिलीफ फ्रॉम द पेन, है ना. This is all clear to you. And in last line he says that the speaker that compares their collective situation, जो ये हम सबकी सिचुएशन है, इसको कलेक्टिव ही एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं. स्टैंडिंग ऑन द फ्लैट मतलब ग्राउंड पे आज मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ. ऑन द डार्क पीस ऑफ द लैंड, ये लैंड कैसी है, डार्क पीस ऑफ द लैंड मतलब बैड लैंड है, बैड पीपल. विच इज काउट अप इन द चाउज ऑफ द फाइटिंग, और यहाँ पे ये लोग एक दूसरे से लड़ ही रहे हैं. द बैटल बिटवीन अननोइंग ग्रुप कंटिन्यू अंडर द कवर ऑफ द डार्कनेस, और ये पूरी रात है और यहाँ पे बैटल हो रही है. आई होप यू लाइक माई वीडियोज, यू लाइक दिस वीडियो, दिस लाइक सेशन, and if you like it, please subscribe to my channel. You can like it, you can share it with your friends. I hope all the best. Wish you everyone who is watching right now will got their dream job of assistant professor, है ना. अगर आपको बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपको कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, एंड यू आर श्योर दैट यू आर गोइंग टू बी selected. You are a selected candidate if you are watching my all videos. Okay, so that's all for this session. We will see you in the next session. Thank you so much.